નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ આપણો દેશ. સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે એક ખાસ અને મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. આપણે વાત કરીએ ગ્રેટર નોઈડાની. તો ગ્રેટર નોઈડામાં યુપી ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ શોના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ વખતે ટ્રેડ શો માટે દેશ ભાગીદાર રશિયા છે અને આનો અર્થ એ છે કે આ વખતે આપણે આ સમય પરીક્ષણ ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવી રહ્યા છીએ. આજે અમારા માર્ગદર્શક પંડિત દીનદયાળજીની જન્મ જયંતિ છે. દીનદયાળજીએ આપણને અંત્યોદયનો માર્ગ બતાવ્યો. અંત્યોદય એટલે કે ગરીબમાં છેલ્લા વ્યક્તિનો ઉદય. વિકાસ ગરીબમાં ગરીબ સુધી પહોંચવો જોઈએ અને તમામ ભેદભાવ દૂર થવા જોઈએ. આ અંત્યોદય છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મિત્રો, હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ. આજે આપણા ફિનટેક ક્ષેત્રની દુનિયામાં ખૂબ ચર્ચા થાય છે અને આ ફિનટેક ક્ષેત્રની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેને સમાવિષ્ટ વિકાસને ઘણી તાકાત આપી છે. ભારતે આવા ખુલ્લા પ્લેટફોર્મ બનાવ્યા છે જે બધાને સાથે લઈ જાય છે. યુપીઆઈ, આધાર, ડિજીલોકર, ઓએનડીસી આ બધાને તકો આપી રહ્યા છે. તેનો અર્થ એ છે કે પ્લેટફોર્મ પર બધા માટે પ્રગતિ છે. આજે ભારતમાં દરેક જગ્યાએ તેની અસર દેખાઈ રહી છે. મોલમાં ખરીદી કરનાર વ્યક્તિ પણ યુપીઆઈ વાપરે છે અને રસ્તા પર ચા વેચનાર વ્યક્તિ પણ યુપીઆઈ વાપરે છે. આપણું એમએસએમઈ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. તે દુનિયામાં વિવિધ અવરોધો વચ્ચે પણ આગળ વધી રહ્યું છે. આપણો સંકલ્પ અને મંત્ર આત્મનિર્ભર ભારત છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મિત્રો, હું તમને એક ઉદાહરણ આપીશ અને આજે દુનિયામાં આપણા ફિનટેક સેક્ટર વિશે ઘણી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે અને આ સેક્ટર સૌથી ખાસ વાત એ છે કે તેને સમાવિષ્ટ વિકાસને ઘણી તાકાત આપી છે. ભારત એવા ખુલ્લા પ્લેટફોર્મ બનાવ્યા છે જે બધાને સાથે લઈને ચાલે છે અને આ તમામ જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ટ્રેડ શોનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે પહોંચ્યા હતા ત્યારે એમને આ તમામ વાતો કરી છે. પ્રજાને સંબોધન કરતી વખતે એમણે આ બધી ખાસ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા અને આત્મનિર્ભર ભારત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે અને તેમણે કહ્યું કે આપણું એમએસએમઈ પણ પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. દુનિયામાં વિવિધ અવરોધો વચ્ચે પણ તે આગળ વધી રહ્યું છે અને આપણો સંકલ્પ અને મંત્ર આત્મનિર્ભર ભારત છે. સમાચારોમાં આગળ હવે વાત કરીએ આપણે મધ્યપ્રદેશના ભોપાલની. તો મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર મોહન યાદવે આજે ભોપાલમાં રાજ્ય સ્તરીય સ્વદેશી જાગૃતિ સપ્તાહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આના ભાગરૂપે સ્વર્ણિમ ફાઉન્ડેશનના નેજા હેઠળ સ્વદેશી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સ્વદેશી જાગૃતિ સપ્તાહ 2 ઓક્ટોબર સુધી ચાલુ રહેશે. આ કાર્યક્રમનો ઉદ્દેશ્ય સ્વદેશી વસ્તુઓનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાનો છે. આ અભિયાન રાજ્યભરના 313 વિકાસ બ્લોક્સમાં યોજાશે. મધ્યપ્રદેશના વિવિધ શહેરોમાં આખું વર્ષ સ્વદેશી મેળા યોજાશે અને આ કાર્યક્રમને સંબોધતા મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે આઝાદી પહેલા મહાત્મા ગાંધીએ સ્વદેશીના મૂળ મંત્ર સાથે દેશભરમાં સ્વદેશી અને સ્વતંત્રતાનું રણચીંગુ ફૂંક્યું હતું. અખંડ માનવતાવાદના પ્રણેતા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય અને ગાંધીજીએ આત્મનિર્ભરતા અને સ્વદેશીના બળ પર સ્વતંત્રતા માટે લડત આપી હતી. સ્વદેશી અને આત્મનિર્ભરતા દ્વારા જ દેશનો વિકાસ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ સામાન્ય જનતાને તહેવારો દરમિયાન ફક્ત સ્વદેશી ઉત્પાદનો ખરીદવાની અપીલ કરી હતી. पहले महात्मा गांधी जी ने चरखे से सूत काटते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलवाई और पूरे देश में स्वदेशी और आजादी का बिगुल फूका था. जोरदार अभिनंदन महात्मा गांधी जी को भी स्मरण करते हैं. हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब मैं महात्मा गांधी जी को याद करता हूं तो आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती भी. और दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन, वो जनसंघ के संस्थापक सदस्य तो थे लेकिन एकात्म मानववाद के प्रणेता. उनके जीवन में दोनों के लिए, हमारे लिए ये बड़ी अद्भुत समानता है. महात्मा गांधी हो या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दोनों का विचार, दोनों का भाव, हमारी माटी, हमारा देश, हमारे देश की आजादी, स्वावलंबन की दिशा, स्वदेशी व्यवस्था, आर्थिक रूप से देश दुनिया के सामने समृद्ध जब बनेगा तो हमारे स्वावलंबन के, स्वदेशी के बीज से आत्मनिर्भरता का वृक्ष बनेगा. ये भाव लेके दीनदयाल उपाध्याय जी और महात्मा गांधी जी चले, जिनके जीवन में महात्मा गांधी जी ने अपने आजादी के संकल्प को पूरा करने के लिए चौराहे पर विदेशी वस्त्रों की होली जला करके, जैसे
भक्त प्रहलाद के काल में ताकत भले किसी में हिरण्यकश्यप में होगी, लेकिन अंततः इस अग्नि की ज्वाला से प्रहलाद निकल के आया। वो हमारे स्वदेशी भाव के प्रतीक थे। जोरदार अभिनंदन करें। स्वदेशी की वो ताकत है जिसके भरोसे से हजारों हजार साल से हमारी संस्कृति दुनिया के सामने कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे आत्मनिर्भरता की जो ताकत है, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें हमारे सामने कई कई रूप में आई, लेकिन हर युग में, हर समय, हर बार हमने हर एक किसी को परास्त किया। तो हम सब जानते हैं उसका मूल मंत्र आत्मनिर्भरता है, स्वदेशी है। स्वदेशी के साथ अपनी मिट्टी से प्रेम भी है। हम सब याद करें भगवान राम के उस काल को, जिनने लक्ष्मण जी के समय सोने की लंका, मां का वैभव, आनंद देख करके लक्ष्मण जी ने कहा भगवान श्री राम से कि भगवान, ये जो अपन ने विजय प्राप्त की है इतनी बड़ी लंका, और ऐसे में इस लंका की विशालता, इसकी भव्यता, दिव्यता और स्वर्ण से बनी लंका, इसका तो हमारे लिए जरा कुछ उपभोग होना चाहिए। महात्मा गांधी हो या भगवान श्री राम, दोनों ने, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये हमारी लंबी विचार परंपरा के प्रतिवाहक है। भगवान श्री राम ने उस समय कहा लक्ष्मण जी के लिए, वो शब्द हम याद करें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो हमारी जन्मभूमि है उसके आगे कोई किसी की तुलना नहीं कर सकते। हमारी मिट्टी से प्रेम करना सीखे, हमारे गांव से प्रेम करना सीखे, हमारी व्यवस्थाओं से प्रेम करना सीखे। ये द्रव्य, आभूषण, ये सब व्यवस्थाएं बात की है, लेकिन हमारी अपनी मिट्टी से, हमारे गांव से जो प्रेम होता है उससे किसी की कोई तुलना नहीं हो सकती। इसीलिए हमने सबने देखा, धन तो दुनिया के कई देशों में, लेकिन धन मन थोड़ी देता। उनका मन कितना छोटा है। हम रोज देख रहे हैं, कोई ये नाटक, कोई वो नाटक। सारी कर्नाटक व्यवस्था में एकमात्र व्यक्ति है 56 इंच के सीने वाले, जो स्वदेशी के भाव से सबसे निपटना जानते। હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે મધ્યપ્રદેશના જ ઇન્દોરની, તો ચંદ્રશેખર આઝાદ રાવણ પર આરોપ લગાવનાર રોહિણી ધાવરીના પિતા અને શિવ ધાવરી અને માતા નૂતન ધાવરી સાથે ઇન્ડિયા ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી। દીકરીને ન્યાય ન મળતા રોહિણીની માતા નૂતન ધાવરીએ સંસદ ભવન સામે સામૂહિક આપઘાત કરવાની ચીમકી પણ આપી છે। જણાવી દઈએ કે ડોક્ટર રોહિણી ધાવરીએ નગીના સાંસદ ચંદ્રશેખર રાવણ પર લગ્નના નામે શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે। રોહિણીની માતાએ દિલ્હી પોલીસ અને મહિલા આયોગને ફરિયાદ કરી, પરંતુ કોઈ પણ કાર્યવાહી થઈ નથી। સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં રહેતી રોહિણીએ ટ્વીટ કરીને ચંદ્રશેખર પર માનસિક પીડા આપવાનો અને જીવન બરબાદ કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે। પિતાનો આરોપ છે કે ચંદ્રશેખરે તેમને ભીમ આર્મીમાં પદનો લાલચ આપ્યો હતો અને દીકરી સાથે કલાકો સુધી વિડીયો કોલ પર વાત કરતો હતો। રોહિણીએ એક્સ પર આપઘાતની ધમકી આપી છે। ચંદ્રશેખરની પત્ની બાળકની તસવીર શેર કરીને ગાળીઓ પણ આપી છે। वाली पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावेरी ने जो आर्मी चीफ है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जो कि सांसद भी हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में सोशल मीडिया एक्स के जरिए ये कहा है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता है, उनके खिलाफ अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होती है, तो वो आत्महत्या कर लेंगी। क्यों उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं, ये इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में रोहिणी के घर में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए रोहिणी के माता पिता हैं हमारे साथ। उनके पिता हैं शिव घावेरी जी और उनकी मां है नूतन घावेरी जी। हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उनके पिता से चर्चा करते हैं। शिव जी, जिस तरह से रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या वजह है इस तरह के आरोप लगाने की? अब 3 महीने से हम लोग ये देख रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण जो अभी नगीना से सांसद है, उनके द्वारा उसका मेंटली डिस्टर्ब किया गया है, मानसिक राज किया, शारीरिक और मानसिक शोषण किया। इस कारण हम लोग पुलिस प्रशासन में गए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी बात करी, आईजीआई थाने में भी गए, बिटिया ने ऑनलाइन कंप्लेन भी करी, महिला आयोग में भी कंप्लेन दी। उसके बाद हम सतत 3 महीने से प्रयास रहते हैं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए।
बिटिया को बहलाया फुसलाया। उसने पहले तो सामाजिक संगठन के नाम पर उसको साथ में किया, उसको बोला कि हम तुम और हम साथ में रहेंगे तो समाज का अच्छे से विकास कर पाएंगे, समाज का उत्थान कर पाएंगे। जिस तरह वो भीम आर्मी नाम का एक संगठन चलाते हैं बाबा साहब के नाम का, वो भी अब जब उनका घिनौना चेहरा सामने आया तो हमें ये लगने लगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम का जो भीम आर्मी ग्रुप चला रहे हैं उसको भी धोखा दे रहे हैं, साथ में दलितों के साथ भी वो धोखा कर रहे हैं। और एक बिटिया के साथ तो धोखा किया ही है उसने। जिस तरीके की उसकी मानसिकता थी, बिटिया आपको खुद को मालूम है कि वो पीएचडी स्कॉलर नहीं, अब तो पीएचडी हो चुकी है उसकी। इवन पिछले वर्ष उसकी पीएचडी हुई। अब तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में एक यूनिवर्सिटी में डीन है वो, और यूएन में भारत की प्रतिनिधि भी है। तो कहने का मतलब इतनी उच्च शिक्षित बेटी के साथ भी उसने धोखा किया। હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજની, તો કાનપુરના ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય અને સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા ઇરફાન સોલંકીને ગેંગસ્ટર એક્ટ હેઠળ નોંધાયેલો કેસમાં જામીન મળ્યો છે. ઇરફાનની સાથે સાથે અલ્હાબાદ કોર્ટે તેમના ભાઈ રિઝવાન સોલંકી અને અન્ય 2 આરોપીઓને પણ જામીન આપ્યા છે. આ નિર્ણયથી ઇરફાન સોલંકીની મહારાજગંજ જેલમાંથી મુક્તિનો માર્ગ મોકળો થયો છે અને જ્યાં તેઓ અને તેમના સાથીઓ છેલ્લા 24 મહિનાથી કેદ છે. અહેવાલો અનુસાર ન્યાયાધીશ સમીર જૈને સુનાવણી પછી 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોતાનો નિર્ણય અનામત રાખ્યો હતો અને આજે 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ નિર્ણય જારી કરવામાં આવ્યો હતો. અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટે ઇરફાન સોલંકી અને તેમના ભાઈ રિઝવાન સોલંકી અને ઇઝરાયલ આટેવાલાની જામીન અરજીઓ પર એક સાથે સુનાવણી કરી. કાનપુરના જાજમાઉ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઇરફાને પોતાની વિરુદ્ધ નોંધાયેલા કેસમાં જામીન અરજી દાખલ કરી હતી અને તેમના વકીલોએ દલીલ કરી હતી કે આ જ કેસમાં અન્ય આરોપીઓને પહેલાથી જ જામીન મળી ચૂક્યા છે અને તેથી સમાનતાના સિદ્ધાંત હેઠળ તેમના અસીલોને પણ રાહત મળવી જોઈએ. સરકારે વળતો જવાબ આપતા દલીલ કરી હતી કે મુખ્ય આરોપી હોવાને કારણે ઇરફાન આ રાહતનો હકદાર નથી. કોર્ટે ઇરફાનના વકીલની દલીલો સ્વીકારી અને ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય સહિત 3 આરોપીઓને જામીન આપ્યા હતા. ત્યારે ઇરફાન સોલંકીની પત્ની અને વર્તમાન ધારાસભ્ય નસીમ સોલંકી કાનપુરમાં રહે છે. ચુકાદા બાદ નસીમ સોલંકી અને પરિવારના અન્ય સભ્યોએ અલ્હાબાદ હાઈકોર્ટની મુલાકાત લીધી અને નસીમે કહ્યું કે તેઓ આ નિર્ણયથી ખૂબ જ ખુશ છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ હવે આપણે ઉત્તર પ્રદેશના બહેરાઇચની, તો દેશભરમાં ઘણી મદરસાઓ જે છે તે ગુના અને અમાનવીયતાના અડ્ડાઓ બની ગઈ છે. ઉત્તર પ્રદેશના બહેરાઇચ જિલ્લામાં એક મદરસાના સમાચાર સાંભળીને તમને આઘાત લાગશે. 40 સગીર છોકરીઓ શંકાસ્પદ સંજોગોમાં મદરસાના શૌચાલયમાં બંધ હાલતમાં મળી આવી હતી. લઘુમતી કલ્યાણ વિભાગે મદરસાના તાત્કાલિક બંધ કરવાનો અને છોકરીઓને સુરક્ષિત રીતે ઘરે મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે. પયાગપુર તહેસીલ સબ મજિસ્ટ્રેટ અને ત્યાં અશ્વિની કુમાર પાંડે જણાવ્યું હતું કે બુધવારે તહેસીલના પહેલવાડા ગામમાં 3 માળની ઇમારતમાં કાર્યરત ગેરકાયદેસર મદરસાની ફરિયાદ બાદ તેઓ અને તેમની ટીમ તેનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ત્યાં પહોંચ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે મદરસા સંચાલકોએ શરૂઆતમાં અમને ઉપરના માળે જતા અટકાવ્યા હતા. જ્યારે અમે પોલીસની હાજરીમાં મદરસામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે અમને છતના શૌચાલયનો દરવાજો બંધ જોવા મળ્યો હતો અને જ્યારે મહિલા પોલીસ દળે દરવાજો ખોલ્યો ત્યારે શૌચાલયમાં છુપાયેલી 40 છોકરીઓ એક પછી એક બહાર આવી. તે બધી 9 થી 14 વર્ષની હતી. છોકરીઓ ગભરાઈ ગઈ હતી અને કંઈ પણ સમજાવી શકી ન હતી. ત્યારે જિલ્લા લઘુમતી કલ્યાણ અધિકારી મોહમ્મદ ખાલિદે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે છોકરીઓને શૌચાલયમાં કેમ બંધ કરવામાં આવી હતી તે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે મદરસાના શિક્ષક તકસીમ ફાતિમાએ સમજાવ્યું કે તેઓ પોતે શૌચાલયમાં છુપાઈ ગયા હતા કારણ કે અચાનક નિરીક્ષણથી થતી અંધાધૂંધીનો ડર હતો. ખાલિદે ઉમેર્યું કે મદરસાના રેકોર્ડની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. હાલ પૂરતું મદરસાને બંધ કરવાના નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે. સાથે મદરસા મેનેજમેન્ટને છોકરીઓને સુરક્ષિત રીતે તેમના ઘરે મોકલવા માટે પણ કહેવામાં આવ્યું છે.
હવે આપણે એક નજર કરીએ મહારાષ્ટ્ર સરકાર પર તરફ, જે અત્યારે હાલ એનએક્સટીમાં જે લોકોનું વિકાસનું પ્રગતિનું કામ ચાલી રહ્યું છે તેના વિશે એક ખાસ અહેવાલ અમે રજૂ કરીએ છીએ. જુઓ અને સમજો. नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा. नेक्स्ट महाराष्ट्र के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है, जिसमें आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी खबरें. ग्रीन स्टील उत्पादन के क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार ने कंपनियों के साथ 80,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर समझौता किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लक्ष्य स्टील निर्माण के क्षेत्र में महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना है. यह रिपोर्ट देखिए. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अगले 8 सालों में महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 स्टील उत्पादक बनाने का लक्ष्य रखा है. फडणवीस सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देते हुए 9 कंपनियों के साथ 80,962 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है. इससे 1 लाख रोजगार का होगा सृजन. ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्टील को बढ़ावा मिलेगा. देश में महाराष्ट्र स्टील प्रोडक्शन में हम चौथे नंबर पर है. योगेश जी 4th. अगले 8 सालों में वी विल बी नंबर 1. मुंबई में AIIFA स्टीलेक्स कॉन्क्लेव 2025 के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इससे पहले राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है. आज करीब 80,000 करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में स्टील के सेक्टर में हुआ है. आने वाले दिनों में और भी ज्यादा होगा. और इससे पहले हम लोग 5 लाख करोड़ के ऐसे ही निवेश ऑलरेडी साइन कर चुके, जो अलग अलग प्रकार से एक्टिव एंगेजमेंट में है. गढ़चिरौली की बायोडायवर्सिटी को बिना नष्ट किए सरकार की योजना 5 करोड़ पेड़ लगाने की है. 40 लाख पेड़ लगाए भी जा चुके हैं. सरकार का लक्ष्य गढ़चिरौली के स्टील इकोसिस्टम को ग्रीन स्टील इकोसिस्टम में कन्वर्ट करना है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए इस अभियान का मकसद महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान का मकसद महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को प्राथमिकता देना और परिवार को सशक्त बनाना है. हमारे देश के सभी माँ बहनें बेटी, इनके लिए जो योजना जो उन्होंने बनाई है अपने जन्मदिन के अवसर पर, इससे भी दिखता है कि उनका हर पल हर दिन देशवासियों के लिए, देशवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने में ये वो गवाह रहे और बिता रहे. मेडिकल सेवाओं को महाराष्ट्र के हर कोने तक पहुंचाने के लिए 75 एम्बुलेंस भेजी गई है, जो शहरी, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में मातृत्व देखभाल, टीकाकरण, पोषण संबंधी मार्गदर्शन और मधुमेह, कैंसर, तपेदिक, रक्त की कमी, सिकल रोग जैसी बीमारियों की जांच करेगी. सरकार की ये पहल परिवार को सशक्त करेगी ही महाराष्ट्र को स्वस्थ प्रदेश बनाने में भी मददगार साबित होगी. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दृढ़ इच्छा शक्ति और नीतिगत फैसलों का ही परिणाम है कि मराठवाड़ा के बीड तक पहली बार रेल लाइन पहुंच सकी. फडणवीस ने बीड से अहिल्यानगर के बीच पहली ट्रेन को रवाना किया. महाराष्ट्र के बीड जिले से पहली बार अहिल्यानगर के लिए ट्रेन सेवा शुरू हुई है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमलनेर बीड के बीच नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया और बीड से अहिल्यानगर की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. 261 किलोमीटर लंबे रेल प्रोजेक्ट्स को 4,805 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है. ये ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और बीड से अहिल्यानगर के बीच 167 किलोमीटर का सफर 5.5 घंटे में तय करेगी. इस रूट पर बीड समेत कुल 15 स्टेशन शामिल हैं. सप्ताह में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन. ये ट्रेन सेवा मराठवाडा और बीड के लिए विकास और अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी. अनेक दशकाच्या प्रयत्नानंतर खऱ्या अर्थानं आपल्या स्वप्नातली रेल्वे या सुरू होते.
आणि मगाशी उल्लेख झाला, किशोर कापूर क्षीरसागर असतील किंवा आमचे नेते गोपीनाथराव मुंडे साहेब असतील, यांनी या रेल्वेचं स्वप्न केवळ बघितलं नाही, तर मुंडे साहेबांनी या रेल्वेचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्याकरता एक मोठा संघर्ष देखील केला। बीड तक रेल सुविधा पहुंचने से इस क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के दिशा निर्देश में महाराष्ट्र में चलाई जा रही विकास परियोजनाओं में तेजी आ रही है। अजीत पवार लगातार विकास कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास जैसे मूलभूत ढांचागत निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार लगातार संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठक की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर पुणे में एम्स के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। पुणे में एम्स के शुरू होने से पश्चिम महाराष्ट्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बीड परली रेलवे लाइन के प्रगति कार्य की भी समीक्षा की और अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के निर्देश दिए। ये रेल लाइन मराठवाड़ा के आर्थिक विकास में काफी मददगार साबित होगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए शिवाजी नगर से हिंजवडी तक पुणे मेट्रो लाइन 3 का निर्माण भी जारी है। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के साथ त्योहारों के समय लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में रेलवे, PMRDA, महाराष्ट्र मेट्रो समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए और सभी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। महाराष्ट्र में बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए फडणवीस सरकार जल्द ही बांस उद्योग नीति लागू करने जा रही है। इससे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए बांस की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए फडणवीस सरकार जल्द ही बांस उद्योग नीति लागू करेगी। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय बांस दिवस सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस की खेती किसानों के जीवन में क्रांति लाएगी और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगी। सरकार की योजना बिजली परियोजनाओं वाले जिलों में बांस की खेती को बढ़ावा देना है। सरकार प्रति भूमि पर भी बांस की खेती का अभियान चलाया जाएगा। गढ़चिरौली में 5 करोड़ पेड़ लगाने के साथ ही बांस भी लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बांस की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया। बांबूला एक प्रकारे लोक चळवळीमध्ये परिवर्तित करण्याचं काम या ठिकाणी पाशाभाईंनी केलं आणि आज मंचावर बसलेली जी सगळी मंडळी आहे यांनी बांबूच्या क्षेत्रामध्ये केलेलं कार्य असेल आणि भविष्यात बांबूच्या क्षेत्रामधल्या ज्या काही संभावना आहेत। महाराष्ट्र सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए बांस उत्पादों को राज्य सरकार की खरीद नीति में भी शामिल करेगी। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए हमारी खास पेशकश नेक्स्ट महाराष्ट्र। હવે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે છત્તીસગઢના કવરધાની। તો કવરધામાં એક યુવતી પર થયેલા આ ગેંગરેપનો મામલો જોર પકડી રહ્યો છે। બુધવારે જિલ્લા હોસ્પિટલમાં થયેલા હોબાળા અને વિરોધ પ્રદર્શન બાદ આજે આદિવાસી સમુદાય પણ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયો હતો। મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સભ્યો શહેરના મધ્યમાં સિગ્નલ ચોક ખાતે ધરના પર બેઠા હતા, જેમાં પીડિતાને ન્યાય આપવાની અને આરોપીઓની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી। વિરોધીઓએ આ ધમકી આપી છે કે જો આરોપીઓની ટૂંક સમયમાં ધરપકડ નહીં થાય તો વિરોધ વધુ તીવ્ર બનશે। आदिवासी समाज की जो बच्ची थी उसके साथ अनाचार की घटना कल रात के 2 बजे हुई है और ये महिला सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर जितने भी प्रकार से अधिनियम बनाए जा रहे हैं, अधिनियम बनाया गया है, उस पर पुलिस प्रशासन को सख्ती से इस पर काम करने की आवश्यकता है। मेरे को ये महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़, बुलडोजर की जो घटना घटती है जैसे उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में और यहाँ कवर्धा में भी इन चीज़ों का भी मांग हुआ है। जब तक
आरोपियों के ऊपर कुठाराघात नहीं होगा, जब तक उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और जो लोग आरोपी हैं इस मामले में, और ये संदेश जाना चाहिए आदिवासी समाज की तरफ से नहीं, पूरे समाज और पूरे वर्ग की तरफ से ये बात जानी चाहिए कि जो भी आरोपी है, जो भी इस तरीके की जघन्य अपराध करने की कोशिश जो किए हैं, उनके घर को तोड़ना होगा बुलडोजर में। ये हमारी शासन। तो आता અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.